Hello students, today we are going to solve exercise 3E from Selena Concise Mathematics. It is a miscellaneous exercise of compound interest. Number 1, simple interest on a sum of money for 2 years at 4% growth is rupees 450. हमें simple interest given है, time period given है, rate of interest given है, and we have to find compound interest on the same sum at the same rate for 1 year. Rate is 4% for compound interest. Time period is 1 year. If the interest is reckoned half yearly compounded है, it means first part जो हमें given है simple interest वाला, वहाँ से हमें sum of money principal P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सेक्शन में पुट करके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 450 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% एंड द टाइम पीरियड इज यू कैन से T और N, इट इज 2 years. सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला PRT अपॉन 100. गिवन वैल्यूज पुट करके P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज 450. is 5625. Now for compound interest, second case, P is 5625. Rate of interest हमें same given है, that is 4%, and the time is 1 year, but interest is compounded half yearly. हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. Compound interest will be equal to 1 plus R upon 2 into 100. Compounded half yearly में यहाँ पर 2 add on होगा and this is N multiply by 2 minus 1. LCM ले लीजिए, that is 50 and 50 plus 1 51 raised to the power 2 minus 1. We are taking LCM in the bracket. ₹227.25. Question number 2. Find come to the nearest rupee on rupees 10,800. Principal हमें given है. टाइम इज 2.5 years. 2.5 years के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसी में हम 2 कंप्लीट ईयर्स के लिए अप्लाई करेंगे और हाफ ईयर के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज P 1 plus R upon 100 raised to the power 2. This is for 2 whole years. Then 1 plus R upon 2 into 100 raised to the power N multiply by 2. This is the value of N and multiply by 2, then minus 1. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. LCM that is 11 by 10 whole square. In this bracket LCM is 20 and numerator is 21. स्टार्टिंग में मैंने कोट किया था, यू कैन ट्रीट दिस एक्सरसाइज एज अ रिवीजन एक्सरसाइज. $2921.4, but we have to calculate compound interest to the nearest rupee. It means 2,921 rupees. Question number 3. The value of a machine purchased 2 years ago. 2 years ago एक मशीन परचेज की गई थी. Depreciates at the annual rate of 10%. Its present value is 97,200 rupees. Find its value after 2 years. कितना हो जाएगा अगर depreciation 10% है. In second part, its value when it was परचेज्ड और यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए आगे के लिए तो हम दिस इज एक्ट एज इनिशियल वैल्यू एंड फॉर बैक this will treated as final value.
पॉल फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए इनिशियल वैल्यू गिवन है 97,200, रेट इज 10% एंड द टाइम इज 2 years एंड वी हैव टू फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ द मशीन, मीन्स द वैल्यू ऑफ ए। डेप्रिसिएशन का केस है, इसलिए 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। LCM ले लीजिए, LCM इज 10, देन 10 माइनस 1 9 रेज टू द पावर 2। 78,732 रुपीज। प्रेजेंट अगर मशीन की वैल्यू 97,200 है, देन आफ्टर 2 years आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% इट विल बी 78,732 rupees. Now for second part, the final value of the machine is 97,200 rupees. Rate of depreciation is same and the time period is also same, and we have to find the initial value of the machine because we have to find the value of cost of the machine before 2 years. Formula will be P 1 minus R upon 100 raised to the power n. Is 1,20,000. Anuj and Rajesh each lent the same sum of money for 2 years at 8%. Sum of money P same है, टाइम पीरियड भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अनुज ने इन्वेस्ट लेंट की है सिंपल इंटरेस्ट पर और राजेश ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर। राजेश रिसीव्ड ₹64 मोर देन अनुज। इट मीन्स difference of compound interest and simple interest is ₹64. Money lent by each and interest received. P की वैल्यू और इंटरेस्ट की वैल्यू, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन हो और टाइम पीरियड 2 years हो, तो इसमें अगर हम डायरेक्ट वैल्यू ना पुट करके इसको टर्मिनोलॉजी की टर्म में ही सॉल्व कर लें तो थोड़ी सी इजी हो जाती है कैलकुलेशन। देखिए कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होती है P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है PRT, ये P हमने यहां ले लिया है, दैट इज R एंड T के प्लेस पर n, एक ही टर्मिनोलॉजी टाइम के लिए यूज करेंगे, अपॉन 100 इज इक्वल टू 64। इसमें जस्ट आप केवल n की वैल्यू 2, बिकॉज दिस टेक्निक विल बी वर्क व्हेन द n इज 2 years, 2 पुट कर दें तो देखिए इसको हम ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर से, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab and last 2 term as it is, then look, these 2 term are cancelled out. Now put the values. P हमें फाइंड आउट करना है, R हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 8% is equal to 64. It means P is equal to 10,000, means सम ऑफ मनी इज 10,000। तो फर्स्ट आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड आंसर में हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज PRT अपॉन 100। P इज 10,000, R इज 8% एंड T इज 2 years। $1,600, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस हमें गिवन है दोनों का 64, देन कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 64 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इट मीन्स 1,664 रुपीज। P हमें फाइंड आउट करना था, दैट इज 10,000, सिंपल इंटरेस्ट इज
1600 and compound interest is 1664 rupees. Calculate the sum of money on which the compound interest for 2 years be 4 times the simple interest on this money for 5 years, both at the rate of 5% per annum. 2 केसेस कंसीडर किए गए हैं क्वेश्चन में, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है और एक सिंपल इंटरेस्ट का केस है. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए P हमें फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमें गिवन है N इज 2 years. सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें P की वैल्यू गिवन है 4715, N है 5 years एंड रेट है 5%, और रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी 5% ही है. साथ ही हमें कंडीशन गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 4 times ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज PRT अपॉन 100. T को आप N भी पुट कर. नाउ इसमें पुट कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट इज P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर N माइनस 1 इज इक्वल टू 4 times ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. P हमें फाइंड आउट करना है, R इज 5% एंड N इज 2 years. फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम पीरियड इज 2 years. is equal to 4715 . Number 6, a sum of money was invested for 3 years. Interest being compounded annually. The rates for successive years are this and this. If the compound interest for the second year amounted to this, sum of money फर्स्ट ईयर में उस पर इंटरेस्ट लगा 10% के रेट से, सेकेंड ईयर में 15% के रेट से और थर्ड ईयर में 18% के रेट से उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर during the second year, that is 4950. With the help of this data we have to find the sum invested, means this P. चलिए जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इसी पर हम वर्क करेंगे. फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर नोन होना चाहिए, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ईयर हमें गिवन है रेट इज 10% एंड द टाइम पीरियड इज 1 year. एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. फॉर सेकेंड ईयर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, P नहीं लिख रहे हैं बिकॉज इन टर्म्स ऑफ P हमने ये निकाला है, दैट इज 11P अपॉन 10. कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर हमें गिवन है 4950. सेकेंड ईयर के लिए रेट परसेंट है 15% एंड टाइम 1 year बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग ओनली फॉर सेकेंड ईयर. एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस P. कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. पुट कर देते हैं वैल्यूज. प्रिंसिपल इज 11P अपॉन 10, कंफ्यूज ना हो, दैट इज P1. R is 15 and N is 1 and compound interest is 4950. Means sum invested was 30,000. Sum
of money is invested at 10% per annum compounded half yearly if the difference of amounts at the end of 6 months and 12 months is rupees 189. After 6 months, suppose its amount is A1, after 12 months means next 6 months its amount is A2, then difference of amounts means A2 minus A1 is rupees 189. हमें given है rate of interest 10% and half yearly compounded है. We have to find the sum of money invested, P. R हमें given है 10% and time period is half year because we are calculating for first 6 months. Then amount will be 6 months वाला ही formula apply करेंगे. In terms of x हमें यहाँ से amount की वैल्यू मिलेगी और उस amount को हमने A1 लेट किया है. $10, 20 is the LCM, that is 20, means amount is 21x upon 20. Now for next difference of A2 and A1 is 189. Put the values. Taking LCM on left hand side. $3,600 is the money invested. Number 8. Rohit borrows 86,000 from Arun. अरुण से रोहित ने बोरो किया 86,000 2 years के लिए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर. ही इमीडिएटली लेंड्स आउट दिस मनी टू अक्षय और उसने आगे इसको मनी उधार दे दी है एट 5% बट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम पीरियड मीन्स 2 years के लिए ही. कैलकुलेट रोहित प्रॉफिट इन ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ 2 years. आप देखिए सिंपली इस क्वेश्चन में हमें आफ्टर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिकॉज रोहित ने लैंड बोरो किया है सिंपल इंटरेस्ट पर और आगे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर. तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो इसे अरुण को पे करना होगा बट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से जितना भी ज्यादा होगा वो रोहित की पॉकेट में जाएगा. मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन एंड द टाइम पीरियड इज 2 years. अगेन मैं कोट करूंगी. टाइम पीरियड 2 years गिवन है और डिफरेंस हमें गिवन है या फिर हमें कैलकुलेट करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं. इसमें जब हम a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो सारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाती है. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हमें करनी होती है. तो चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा. लेट द मनी इन्वेस्टेड इज p, देन p1 प्लस r अपॉन 100 raised to the power n and n is 2 minus 1 and simple interest होगा p we are taking अगर एग्जाम में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है या फिर क्वेश्चन में गिवन है तो आप इस तरीके से a+b होल स्क्वायर से पहले ओपन करेंगे, उसके बाद वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट की पुट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज दिस. सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है
फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी, मीन्स पी भी हमें फाइंड आउट करना है और इस पी को फर्दर यूज करना है टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट, रेट सेम है आफ्टर 2 years। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ए और पी दोनों फाइंड आउट करने हैं। अमाउंट हमसे पूछा गया है और प्रिंसिपल को हमें आगे वाले सेक्शन में यूज करना है। सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, फॉर्मूला होता है पी आर टी लिख लीजिए, एन लिख लीजिए अपॉन 100, दैट इज 1200। प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई, principal is 8000. Now amount will be principal plus interest, $9,200. अब in second section we have to find compound interest on this money, means on 8000. Rate is same, that is 5%, and the time period is 2 years. And we have to find compound interest. Compound interest is 820 rupees. We have to calculate amount also, that is principal plus interest, 8,820 rupees. Question number 10, last question of this exercise, also this chapter. Nikita invests 6,000 for 2 years at a certain rate of interest, compounded annually. At the end of first year, it amounts to this. हमें given है if P is 600 and अगर हम इसको अमाउंट ले रहे हैं देन टाइम पीरियड इज 1 year, बिकॉज दिस अमाउंट इज एट द एंड ऑफ 1 year. देन अमाउंट इज 6,720 rupees. वी हैव टू कैलकुलेट द रेट परसेंट आर एंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. 2 years के लिए इन्वेस्ट किया गया था, तो सेकेंड ईयर के लास्ट में हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है. तो चलिए पहले हम रेट परसेंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. Rate is 12% per annum. Now we have to calculate amount after 2 years. Principal is 6,000, rate is 12%, N is 2 years. Then amount will be ₹7,526.40. और इसके साथ ही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.